الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، یہ مختصر سی مجلس انتہائی اہم اس لیے ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مجلس میں ایک بچے نے حفظ قرآن کا آخری سبق سنایا ہے، اس کی تکمیل کی ہے. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مجلس کے اندر ہمیں شرکت کا موقع ملا. اور دوسرا پہلو اس مجلس کا یہ ہے کہ جمعیت علماء کے تحت یہ اصلاح معاشرہ سے متعلق ایک مختصر مجلس، اور پھر اس کے بعد بھنیڑے کی سرزمین میں جمعیت علماء کی یونٹ کے قیام کے تعلق سے یہاں پر انشاءاللہ عمل ہوگا. تو عمل کے لحاظ سے یہ مجلس انتہائی اہم، فضیلت، عظمت اور برکت والی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر ایک آیت اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. مختصراً میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کا ترجمہ ضروری تشریح کے ساتھ پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کون ہے جو مجھ سے چند چیزوں کو، چند باتوں کو حاصل کرے اور ان پر عمل کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے بول اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فأخذ بیدی، جب میں نے یہ کہا کہ آقا اس کام کے لیے میں تیار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کسی کو خاص طریقے پر ہاتھ پکڑ کر کوئی بات بولی جاتی ہے تو اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آقا نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسہ، اور 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی قیمتی باتیں ہوں گی۔ 5 نصیحتیں آقا نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت آقا نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ، تمہارا شمار سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہو جائے، تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، حرام کاموں سے پرہیز کرو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے تو بہت زیادہ عبادتیں کرو، سمجھنے کی بات ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر بڑا عبادت گزار بننا ہے تو گناہوں سے بچو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر 2 طرح کے احکام سامنے آتے ہیں۔ ایک احکام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، جن کو گناہ کہا جاتا ہے، حرام کام کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ سوال قائم کیا جائے کہ نیک کاموں کو کرنا زیادہ اہم ہے یا گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے، تو ایک ماہر مفتی اس حدیث کی روشنی میں یہ جواب دے گا کہ نیک کاموں کو کرنا بے شک اہم ہے، عبادات کو کرنا یقیناً اہم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات اور اچھے کاموں کے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اگر آپ موازنہ کریں، مقابلہ کریں کہ نیک کاموں کو کرنا زیادہ اہم یا گناہوں سے بچنا زیادہ اہم، تو ایک ماہر مفتی اس حدیث کی روشنی میں بتائے گا
کہ گناہوں سے بچنا نیک کاموں کے کرنے کے مقابلے زیادہ اہم، کیونکہ اگر آپ عبادات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے اعمال صالحہ، ہماری عبادات گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہیں، تو پھر اللہ کے یہاں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت سے یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو اور پیغمبر علیہ السلام بھی اس مجلس میں ہو تو تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند مت کرو، اور جس طریقے سے تم آپس میں زور زور سے گفتگو کرتے ہو اس طریقے سے تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے گفتگو مت کرو۔ ان دونوں کاموں سے منع کیا، تو یہ دونوں کام غلط کام ہوئے، ناجائز کام ہوئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر تم یہ ناجائز کام کرو گے، اگر تم یہ گناہ کے کام کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے اعمال صالحہ، تمہاری عبادات خراب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی عبادات بھی کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کاموں سے بچنا پڑے۔ تو ایک تو آقا کے فرمان میں یہ بات ہمیں ملی پانچوں نصیحتوں کے اندر کہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ گناہوں سے خاص طریقے پر بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری نصیحت آقا نے فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر تم لوگوں کو مالدار بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، سبھی کو ہوتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ مالدار اور بے نیاز بننا چاہتے ہو تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ذہن و دماغ کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو میرے مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی مجھے ملنے والا نہیں۔ اگر اس طریقے پر اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے، یہ ہمارا ذہن بن گیا، تو ایسا ذہن جس کا بن جاتا ہے وہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کے دماغ سے الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دماغ میں طمع اور لالچ ختم ہو جاتا ہے، اور سکون کی زندگی اسے میسر آ جاتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر مالداری کی تعریف یہی کی ہے
इन्नल गिना गिनन नफ्स, कि मालदारी इसका नाम नहीं है कि तुम्हारे पास दौलतों के अंबार लगे हुए हों और सुकून और इत्मीनान की दौलत तुम्हारे पास न हो, इसका नाम मालदारी नहीं है। मालदारी ये है कि इंसान का दिल मुतमईन, और जो अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाता है उसका दिल मुतमईन हो जाता है। इसलिए आका ने फरमाया कि अगर तुम मालदारी और बेनियाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह की तकसीम पर राजी होना पड़ेगा। तीसरी नसीहत आका ने फरमाई, व अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना, कि अगर तुम कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो। इसमें आका ने ये नहीं फरमाया कि वो पड़ोसी तुम्हारा अपना भाई मुसलमान हो, ये नहीं फरमाया, आम रखा वो पड़ोसी तुम्हारा मुसलमान भाई हो या गैर मुस्लिम भाई हो, किसी भी जात और बरादरी का हो, किसी भी रंगो नस्ल का हो, उसका कहीं से भी ताल्लुक हो, किसी भी खित्ते का आकर आपके पड़ोस में रहने लगा हो, आपका पड़ोसी हो, आका ने फरमाया कि ईमान कामिल तुम्हारा तभी हो सकता है जब तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो। ये मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम ये अमन और आश्ती का मजहब है। ये प्यार, मोहब्बत और इत्तिफाक और इत्तिहाद की तालीम देता है। ये हुक्म देता है कि तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखे, अगर तुम उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं। चौथी नसीहत आका ने फरमाई, वअहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, कि अगर तुम कामिल और मुकम्मल मुसलमान बनना चाहते हो तो दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। क्या कोई अपने लिए ये पसंद करता है कि उसे तकलीफ दी जाए? क्या कोई अपने लिए ये पसंद करता है कि उसकी पीठ पीछे बुराई बयान की जाए? कोई पसंद नहीं करता। क्या कोई पसंद करता है कि उसके हुकूक को कोई तलफ करे, कोई मारे, उसकी जमीन को कोई हड़प करे, उसके माल को, जायदाद को कोई हड़प करे, उसकी बहू बेटियों की तरफ कोई नजर उठा करके देखे, कोई उसे गाली दे, कोई उसे बुरा भला कहे, कोई उससे हसद करे? कोई अपने लिए इस बात को पसंद नहीं करता। आका ने फरमाया कि अगर तुम मुकम्मल कामिल मुसलमान बनना चाहते हो तो ये जरूरी है कि तुम दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। पांचवी नसीहत आका ने फरमाई, वाला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, कि ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो जाता है तो उसके अंदर खैर की बातों को कबूल करने की और गुनाह की बातों से नफरत करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। गफलत की जिंदगी इंसान गुजारता है और एक दिन मौत उसको अपने चुंगल में फंसा लेती है और वो गफलत की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये पांच नसीहतें हैं जो आका ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर बड़ी खुसूसियत के साथ, बड़ी अहमियत के साथ इरशाद फरमाई हैं। इन पांचों नसीहतों पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। मैंने मुख्तसरन आप हजरात के सामने पांचों नसीहतों का तर्जुमा जरूरी वजाहत के साथ पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन पांचों नसीहतों पर मुकम्मल तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ, आखिरी सबक बच्चे ने पढ़ दिया है, यहीं आकर मालूम हुआ कलाम इलाही इसको तमाम कलामों पर
ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह तबारक व तआला को तमाम मखलूकात पर। बाद अहादीस के अंदर ये आया है कि कुरान करीम में जितनी आयात हैं, बात समझने की है, कुरान करीम में जितनी आयात हैं जन्नत के उतने ही दर्जात हैं। एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। बाद दूसरी अहादीस में यह मजमून दूसरे अंदाज से आया है। यूं आया है कि कुरान करीम की आयतें ये खुद जन्नत के दर्जात हैं, दोनों में फर्क है। और इसका मतलब मुख्तसरन चंद लाइनों में यूं कहा जा सकता है कि ये कुरान करीम जो आज छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं, दरअसल हम इसको यहां पर देख रहे हैं दुनिया के अंदर, इस आलम आबुदिल के अंदर, कि ये एक पढ़ने पढ़ाने की चीज है। इसमें आयतें हैं, अल्फाज हैं, हुरूफ हैं, लेकिन जब यही कुरान करीम आलम आखिरत कायम होगा और वहां पर ये अपनी असली शक्ल इख्तियार करेगा तो वहां पर इसकी ये शक्ल नहीं होगी। वहां पर ये पूरी जन्नत बनकर खड़ा हो जाएगा। जहां तक भी नजर जाएगी इंसान की, वहां तक उसको ताहद निगाह जन्नत नजर आएगी। उसमें बागात होंगे, फूल होंगी, नहरें होंगी, दुनिया भर की जितनी नेमतें हम कुरान और हदीस के हवाले से सुनते हैं, मुकम्मल जन्नत। कुरान करीम जब असली शक्ल इख्तियार करेगा तो ये जन्नत की शक्ल में ढल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को इस अंदाज से बनाया है कि ये आलम आखिरत में जब अपनी असली शक्ल इख्तियार करेगा तो यही कुरान जन्नत की शक्ल में ढल जाएगा और ये हमारे सामने दुनिया के अंदर एक किताब की शक्ल में है, आयतों की शक्ल में है, पढ़ने पढ़ाने की चीज है। इसीलिए रिवायतों में आता है कि जब आलम आखिरत कायम होगा, दूसरे जो अंबिया हैं साहिबे किताब, उनको बुलाया जाएगा, उनसे उनकी किताबों की तिलावत कराई जाएगी। आखिर में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा और आपसे कुरान की तिलावत कराई जाएगी। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते जाएंगे, एक जन्नत बनती चली जाएगी। सहाबा किराम भी उस वक्त हैरान होंगे कि कुरान करीम का ये रुख और ये तस्वीर तो कभी हमारे सामने आया ही नहीं। ये है कुरान करीम। तो गोया जो बच्चा अपने सीने में कुरान को हिफ्ज कर रहा है, तो यूं कह लीजिए कि वो जन्नत को समेट कर अपने सीने में महफूज कर रहा है। जब आलम आखिरत में ये सिमटी हुई जन्नत खुलेगी, तब इस हाफिज को भी पता चलेगा कि ये कुरान करीम तो जन्नत था जो मैंने महफूज किया था, आज उसकी हकीकत हमारे सामने आई है। क्योंकि हर वक्त हमारे हाथों में है कुरान करीम, इसलिए हमें इसकी आजमत का अंदाजा नहीं। इसकी आजमत को समझें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं और जहां हिफ्ज की दरसगाहें चल रही हो उनको गनीमत समझें, उनकी कदर करें, उनका ताउन करें। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी जो हाफिज हुआ है बामल आलिम बनाए और इस बच्चे को इसके अहले खाना के लिए, खानदान वालों के लिए निजात और शफाअत का जरिया बना। हदीस में आता है कि एक हाफिज कुरान अपने घराने के 10 ऐसे लोगों की बख्शिश की सिफारिश करेगा कि जिन 10 पर जहन्नम लाजिम हो चुकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और जहन्नम से निजात अता फरमाएंगे।
जमीयत उलमा के तहत ये मजलिस है। हमारे जमात के कदीम साथी हज़रत मौलाना सलीम अहमद साहिब दामत बरकातुहुम, जो इसी बस्ती के रहने वाले हैं और जमीयत उलमा में बहुत पुराने पहले से जुड़े हुए हैं और बड़े मुतहर्रिक और फ़आल आदमी हैं माशाअल्लाह। इनकी कोशिश थी कि भनेड़े के अंदर भी जो इनकी अपनी बस्ती है वहां पर भी जमात का निज़ाम कायम किया जाए और जमीयत उलमा की यूनिट कायम की जाए। इसलिए यहाँ पर मौलाना सलीम साहिब और मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहिब और इनके जो दीगर रुफ़का हैं उनकी दावत पर और इस मुतालबे पर कि जमीयत की यूनिट यहाँ पर कायम की जाए, जमीयत उलमा का एक मुख्तसर सा वफ़द यहाँ पर आया है इसी मकसद के लिए। अल्लाह ताला इस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। जमीयत उलमा की मुख्तसर तारीख हजरत मौलाना ने अभी आपके सामने बयान की। आप उलमा हजरात तो सब जानते ही हैं। जमीयत उलमा जिसका क़याम ज़ाहिरी तौर पर 1919 में हुआ, जमीयत उलमा ये नाम दिया गया, लेकिन काम जो चल रहा था उसकी एक बहुत पुरानी तारीख है। जो गिरोह, जो जहनियत, जो तबका एक कई सदी से काम कर रहा था, ये जमीयत उलमा उन्हीं की सोच का खुलासा और निचोड़ है। आप जानते हैं अभी 15 अगस्त के प्रोग्राम हुए, ताजी ताजी बात है। 1601 के अंदर अंग्रेज ने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तिजारती कंपनी की बुनियाद रखी थी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, और रफ्ते रफ्ते पूरे मुल्क पर काबिज हो गया। चूंकि मुल्क मुसलमानों से छीना गया था, इसलिए तकलीफ और दर्द मुसलमानों को था। जिद्दोजहद चलती रही, मुसलमान और उलमाए किराम इस सिलसिले में फिक्रमंदी के साथ काम करते रहे और 1757 में पहली मर्तबा अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। 1757 के बाद 1857 तक 100 साल के अरसे में उलमाए किराम ने और दीगर जी शऊर बाखबर मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क अजीज को आजाद कराने की मिसाली कुर्बानियां पेश की। मुख्तलिफ और मुतअद्दिद बड़ी बड़ी जंगें हुई, लेकिन मुकाबला हुकूमत से था, हुकूमत की फौज से था। नाकामियां मिलती रहीं। 100 साल का अरसा ऐसा गुजरा है जिसमें सिर्फ आप थे, आपके उलमा थे, आपके दूसरे जी शऊर मुसलमान थे। 1857 के बाद 1857 के मौके पर मुसलमानों ने, बिरादरान वतन को साथ दिया। चूंकि अंग्रेज मुसलमानों के मजहबी जज्बात से भी खेल रहा था और हिंदुओं के मजहबी जज्बात से भी खिलवाड़ कर रहा था, आसान हो गया बिरादरान वतन को साथ लेना। जबरदस्त मार्का हुआ। एक हिंदू मौर्रिख लिखता है कि 1857 के मौके पर आगे पीछे कुल मिलाकर तकरीबन 5 लाख मुसलमान मुल्क अजीज की आजादी की खातिर शहीद हुए। कोई मुसलमान लिखता तो बात अलग थी, हिंदू मौर्रिख लिखता है, नाम मेरे जहन से इस वक्त उसका निकल रहा है। बहरहाल इसमें भी शिकस्त मिली। फिर उसके बाद यही उलमा का तबका आगे बढ़ता रहा। 1866 में इसी उलमा के तबके ने मुल्क के लिए जियाले पैदा करने के लिए दारुल उलूम देवबंद की और पूरे मुल्क के अंदर मदारिस की बुनियाद डालनी शुरू की। सिलसिला चलता रहा। 1857 के 10 साल के बाद
एक अंजुमन समरतुत तरबियत के नाम से कायम की गई। मकसद वही था जो चल रहा था, अंग्रेजों से मुकाबला और मुल्क को आजाद कराने की फिक्र। 30 साल तक पहले मौलाना कासिम नानोतवी ने उसकी क़यादत की, फिर 30 साल तक हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी क़यादत की, फिर 1909 के अंदर जमीयतुल अंसार के नाम से हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जमात कायम की, मजीद रूह फूकने के लिए, मुल्क के लिए जियाले पैदा करने के लिए। फिर आगे बढ़े, सिलसिला जारी रहा, बरादरान वतन काफी हद तक साथ आ गए थे। फिर 1919 में उलमाए किराम ने, उसी तबके ने जो काम करता चला आ रहा था, 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से उस पुरानी तंजीम को ये प्लेटफार्म दिया और फिर यहां से जमात का आगाज हुआ। और फिर मिलजुल कर बेशुमार कुर्बानियों के बाद बिरादरान वतन के साथ मिलकर इनकलाबी तहरीकात शुरू करके फिर जो पुरजोश अंदाज में अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के तसल्लुत से आजाद। अब आप अंदाजा लगाइए कि जमीयत उलमा के पुराने अकाबिरीन और 1919 से भी कितनी कुर्बानियां वतन अजीज की आजादी के लिए जमीयत उलमा ने पेश की। उसके बाद आजाद होते होते मुल्क तकसीम हो गया। जो मजबूत किस्म के मुसलमान थे पाकिस्तान चले गए, जमीयत उलमा तकसीम के खिलाफ थी। कमजोर दबे कुचले मुसलमान बाकी रहे, मुसलमानों के कदमों को जमाया। मैं बहुत ताहिराना नजर डाल रहा हूं, मुसलमानों के कदमों को जमाया और जो हुकूमती लोग थे उनको पकड़ करके बैठे कि मुल्क तकसीम तुमने किया है, हमने नहीं किया। हमने आपको साथ में लेकर मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां पेश की। आपने हमसे वादे किए थे कि मुल्क सेकुलर बनेगा, दस्तूर सेकुलर होगा। जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने दस्तूर को सेकुलर बनवाया। जो दस्तूर साज असेंबली थी उसके 30 मेंबरान थे मुसलमान, उसमें खास तरीके पर मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेवारवी रहमतुल्लाह जो जमीयत के इंतहाई अहम आदमी थे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे, वो उस कमेटी के अंदर शामिल थे और उन्होंने कोशिश करके इसका दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनवाया। उसके बाद से मुसलसल जमीयत उलमा मुसलमानों के तमाम मिल्ली मसाइल में क़यादत का फरीजा अंजाम दे रही है। कोई भी मसला पेश आता है जमीयत उलमा का उसमें कायदाना किरदार ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और क़यादत का मतलब ये याद रखिए, ये हरगिज नहीं होता कि अवामी जज्बात के मुताबिक लोगों की वाहवाही लूटने के लिए जैसे अवाम का रुख हो उसके मुताबिक झंडे लेकर जमीयत उलमा सड़कों पर उतर जाए, ये क़यादत का मतलब नहीं होता। जमीयत उलमा मुल्क के मिजाज को ऐसे जानती है जैसे आदमी अपने बच्चे के मिजाज को जानता है, क्योंकि कब से जमीयत उलमा के अकाबिरीन और ये ग्रुप काम कर रहा है। और फिर जमीयत का नजरिया फैसला करने में हमेशा ये रहता है कि अकाबिरीन की सोच सामने रखी जाए, अकाबिरीन का नजरिया सामने रखा जाए और साथ साथ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुख्तलिफ किस्म के दौर हैं उन दौर को सामने रखा जाए। आपने किन हालात में किस तरीके से मुसलमानों के कदमों को जमाया, उन हालात को सामने रखकर बड़ी दूर अंदेशी के साथ जमीयत उलमा काम करती है, सड़कों पर नहीं उतरती। क़यादत का सही माना यह है और सच्ची क़यादत उसको कहा जाता है जो अवामी नारों में अपने आप को न बहाए, बल्कि वो ये गौर फिक्र करे कि कौन सा फैसला लेने में
और किस नजरिए को अपनाने में कौम और मिल्लत का नफा है। चाहे वो नजरिया और वो फैसला वक्ती तौर पर कुछ लोगों की समझ में ना आए, जमीयत उलमा इसकी परवाह नहीं करती। हमने बहुत सी मर्तबा देखा है कि जमीयत उलमा के कुछ फैसलों पर लोगों को एतराज होता है, और जमीयत उलमा जानती है कि लोग एतराज कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन मिल्लत का नफा जिसमें समझती है वही रास्ता इख्तियार करती है। और ये बार बार देखने में आता है कि जमीयत उलमा पहले दिन जिस नजरिए पर कायम होती है, बाद में लुट पिट कर दूसरे नजरिए वाले भी वहीं आ जाते हैं जहां जमीयत उलमा पहले दिन खड़े थे। इसलिए कि जमीयत उलमा जानती है कि अंजाम क्या हो। जमीयत उलमा हमेशा कानून के दायरे में रहकर मुसलमानों के मसाइल को हल करने पर यकीन रखती है। आप 15 हैं, 85 दूसरे हैं। यहां किस तरीके पर काम किया जा सकता है जमीयत उलमा जानती। जो फिरका परस्त लोग हैं वो चाहते हैं कि आप भड़कें, मुंतशिर हों, सड़कों पर आए और आपको दिखाकर दूसरों को मुत्तहिद किया जा सके। जमीयत उलमा प्यार मोहब्बत की तालीम देती है। जमीयत उलमा कहती है कि कोई भी मामला हो हमें सड़कों पर नहीं उतरना। बताएं आप कोई मामला अहम हो, जमीयत उलमा ने उसमें अदालत का रुख न किया हो, आपको कोई मामला नहीं मिलेगा। हमारे हजरत कायदे मिल्लत अमीरुल हिंद जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिस वक्त लोग जेलों में बंद बेकसूर मुसलमान नौजवानों के मुकदमात लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और ये समझा जाता था कि इनकी अगर हिमायत करेंगे और इनके मुकदमात की अगर पैरवी करेंगे तो हमें भी इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाएगा। उस वक्त तने तनहा कायदे मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया खड़े हुए। तनहा आवाज थी मुल्क के अंदर और लोगों में खौफ था कि क्या बात जमीयत के ऊपर आ जाए, हजरत के ऊपर आ जाए। लेकिन हजरत ने उस वक्त लोगों के खौफ को सामने नहीं रखा, मिल्लत के नफे को सामने रखा। उन घरानों की आहें हजरत के कानों से टकराई जिन घरों के नौजवान बच्चे जेलों में बंद हो गए। गरीब घराने के बच्चे, वही सरमाया था नौजवान, वही माँ बाप का सहारा था, वही जेल में बंद। नई नई शादी हुई, वो जेल में बंद। छोटे मासूम बच्चे, किस तरीके से घर वाले तसल्ली देते होंगे अपने आप को। हजरत ने कहा कि ये मसला ऐसा है कि इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुकद्दमात लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे बरी हुए जिनको अदालत ने किसी को सजाए मौत सुना दी थी, किसी को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अभी जो हजरात अखबारात देखते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, मालीगांव बम धमाके के केस में जो लोग जेलों में थे 20 साल के बाद गालिबन उनकी रहाई हुई, उनको उम्र कैद हो गई थी। ये और इस तरह के बहुत वाकयात हैं जो मुस्तकिल जमीयत उलमा लड़ती है और काम करती है। वक्फ का मसला हो, मसाजिद मदारिस का मसला हो, जमीयत उलमा अदालत में अपना काम करती है। यह आपकी तंजीम और आपकी जमात, इस जमात से जुड़ना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अकाबिरीन की जमात है, हमारे पास कोई और तंजीम और जमात नहीं है। इससे जुड़िए। यहाँ आज यूनिट का कयाम किया जा रहा है, एक कमेटी बना दी जाएगी। आप हजरात उनसे जुड़ करके रहें। मरकज की हिदायत सूबे के वास्ते से जो जिले को पहुंचती है वो इंशाअल्लाह आप हजरात तक पहुंचती रहेंगी, और जो मुस्तकिल मिशन और प्लान जमीयत का पहुंचा हुआ है यूनिटों में
उसके मुताबिक आप अपनी यूनिट के अंदर काम करते रहें, फ़ालियत के साथ इंशाअल्लाह खैर रहेगी। और जब जब भी जमात आपको आवाज़ दे, जमात की आवाज़ पर लब्बैक कहते रहें। अल्लाह ताला हम सबको जमात के साथ मजबूती के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जिस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है उसकी दस्तार बंदी हो रही है। हाँ, शुरू की कहाँ से शुरू होगी? जो पगड़ी बांधते हैं वो अच्छी बांधते हैं। मजबूत से बांधिए तो कुछ देर टिकी रहे, है ना। हाँ इंशाल्लाह। हमारी शायद कहाँ है? मेरा पीछे माशाल्लाह। चल अब यहाँ पर कमेटी के अंदर एक सरपरस्त बना लिए जाएं, एक सदर बना लिए जाएं, एक नाजिम बना लिए जाएं और एक दो नाइब सदर, एक दो नाइब नाजिम और दीगर कुछ मेंबरान बना लिए जाएं। 10-12 लोगों की एक कमेटी बना ली। तो सरपरस्ती के लिए नाम बता दीजिए। मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब। माशाल्लाह मौलाना अय्यूब साहब सफेद गाड़ी वाले आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। सरपरस्ती बुजुर्गों की अच्छी लगती है। और एक सदर बना लिए जाए। माशाल्लाह मैं चूंकि 2 हजरात से वाकिफ हूँ। मौलाना सलीम साहब तो बहुत पुराने आदमी हैं जमात के और बड़े मुतहर्रिक हैं। इत्तिफाक ही है कि ये दिल्ली चले गए। हमने तो बहुत कोशिश की है भाई यहाँ आओ, लेकिन यह है कि ये इनकी बस्ती है, आते जाते रहते हैं और मुतहर्रिक आदमी है, मोबाइल का जमाना है। काम को फाल बनाने के लिए मेरी राय है कि मौलाना सलीम साहब को सदर बनाया जाए, है ना, और मुफ्ती अशरफ साहब को नाजिम बनाया जाए, है ना। मुतहर्रिक आदमी है माशाल्लाह। और बाकी आप हजरात नाइब सदर बना लें। इमाम साहब का नाम मौलाना मोहम्मद सरफराज साहिब नाइब सदर हो जाएंगे जी। एक कारी शहजाद साहब हो जाएंगे नाइब सदर और नाइब नाजिम बना लें हाफिज वसीम साहब। एक हाफिज वसीम साहब को नाइब नाजिम, मौलाना अब्दुल मुकीद साहब इनको नाइब नाजिम, हाफिज जलील साहब हाफिज जरीस साहब खजांची के ओहदे पर हो जाएंगे। माशाल्लाह अहम ओहदा है। और निशान साहब बना दो नाजिम इस्लाह नशर इरशाद। अच्छा अच्छा, नाजिम नशर इरशाद कारी मोहम्मद जीशान साहब, इनको नाजिम नशर इरशाद बना दिया जाए। और ये कारी साहब भी ही रहते जी। हाँ कारी है। ये नाइब सदर है, तीन हो जाएंगे। नाइब सदर कारी मोहम्मद याहिया साहब ऐसे हो जाएगा। हाँ लो दिखाओ, मुझे दिखाओ।
सरपरस्त मौलाना मोहम्मद अयूब साहब, सदर मौलाना मोहम्मद मौलाना सलीम अहमद साहब, और नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब, और नाइब सदर कारी मोहम्मद याहया साहब, है ना। दूसरे नाइब सदर का नाम है मौलाना मोहम्मद सरफराज साहब। एक नाइब सदर और थे, दो हुए अभी। अब्दुल जब्बार साहब थे शायद कोई, अब्दुल मुहीत, मौलाना अब्दुल मुहीत साहब, मौलाना अब्दुल मुहीत साहब। अब नाइब नाजिम हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, कारी मोहम्मद शहजाद साहब, और खजानची हाफिज मोहम्मद जरीस साहब, और नाजिम नशर इशाअत कारी मोहम्मद जीशान साहब। और आप हजरात सबको मिंबर अपना लिख लें, मिंबरी में तो सबका नाम लिख लो, है ना। मकामी मिंबरी में सबका नाम लिख लो, लिखवा दीजिएगा। मिंबर के नाम भी लिखवा दीजिएगा। मिंबरान भाई मोहम्मद आरिफ साहब। अच्छा भाई अल्लाह दिया, क्या नाम? हाफिज शमीम।